Hello everyone. This is the second part of the linear measurement unit. I have already covered the theory part. So if you have not uh, covered that part, if you have not seen that part, please uh, go to the unit number 2, linear measurement of the part 1. Let's go for the MCQ and its explanation session. The very first question, in a metric chain, the number of links per meter run can be. So the answer is 5. Number of links per meter. In metric chain, 20 and 30 meter chain are there. Okay, 20 meter length and 30 meter length of the chain. The number of links per meter, that is the 5. The fixed point, whose elevation is known as a benchmark. हमें पता है कि कभी भी सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, राइट? और वो फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में ही हम बाकी सारे पॉइंट्स के रीडिंग्स फाइंड आउट करते हैं. सो दैट्स व्हाई अ वन common point is required, that is a fixed throughout the survey work. So the fixed point whose elevation is known as a, it's called as a benchmark. So the correct answer is benchmark. Ranging is defined as, what do you mean by ranging? Ranging हम कब करते हैं? जब हमारे पास चेन लाइन है. आपको पता है कि चेन लाइन एक बार हम लोग अलाइनमेंट में लेके आते हैं, उसके बाद हम वो पर्टिकुलर पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, right? So chain that remain as it is. But once we complete the 20 meter chain and after that हमें और भी सर्वे करना है, तो उसके लिए हमें वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, उसके लिए हमें रेंजिंग प्रोसेस करना पड़ता है. सो रेंजिंग इसके लिए करते हैं ताकि जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को हम एस्टैब्लिश कर सके चेन लाइन के ऊपर. सो द करेक्ट आंसर इज establishing the intermediate points on a chain line. B is the correct answer. A line joining some fixed point on the main survey line is called as tie line. Correct answer is tie line. Main survey station होता, a line joining the some points on the main survey station. So the answer is the survey line, main survey line. But यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? A line joining fixed points on the main survey lines. ओके, मेन सर्वे लाइंस के ऊपर हमने सर्टेन पॉइंट्स को फिक्स किया हुआ है. वो लाइन को, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं और दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ टाई लाइन. जब भी हम चेन सर्वे करते हैं उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे पॉइंट्स को मेन सर्वे लाइन से कवर कर पाए. दैट्स वाई अगर कोई इंटीरियर डिटेल्स है, वो इंटीरियर डिटेल्स को कवर करने के लिए हमें सर्टेन पॉइंट्स रखने पड़ते हैं मेन सर्वे लाइंस के ऊपर, और फिर वो मेन सर्वे लाइन के पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, देन विल गेट द टाई लाइन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. When a 1 centimeter on a map, when a 1 centimeter on a map represent the 10 meter on the ground, that is nothing but the definition of the representative fraction. Representative fraction का मतलब क्या होता है? The distance on the map divided by distance on the ground. That's called as a representative fraction. So ultimately हमें इसका आंसर किस फॉर्म में लेके आना है? कोई एक पर्टिकुलर यूनिट में. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, नीचे 10 मीटर है. 10 हमने लिखा एंड देन हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 1000. सी इज द करेक्ट आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 1000.
Mean sea level adopted by the Survey of India for the reference is located at. Answer is Bombay. The distance between the two brass rings in a surveyor's chain is 20 centimeter. The distance between the two brass rings in a surveyor's chain is at 20 centimeter. Survey line provided to verify the accuracy of the framework is known as. जब भी हम चेन सर्वे करते हैं उस टाइम पे मेजरली हम डिवाइड कर देते हैं एंटायर एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में. आफ्टर दैट वी आर प्लॉटिंग सर्टन लाइंस, दैट इज द मेन लाइन, देन सर्वे लाइन. उसके बाद जो भी एक लॉन्गेस्ट लाइन है हम वो बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ बेस लाइन, कि वो एंटायर एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सके. उसके बाद tie lines, if required we'll go for the tie line preparation. Okay, अब यहाँ पे हम जो भी सर्वे कंटिन्यू करते हैं वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो करेक्ट है या नहीं, राइट. So to verify the accuracy of the framework, check line is used. So the correct answer is check line. Accuracy चेक करने के लिए चेक लाइन हम यूज करते हैं. बेस लाइन एंटायर एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है. इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन इन द सर्वे फ्रेमवर्क. देन मेन सर्वे स्टेशन को जो लाइन कनेक्ट करती है दैट्स कॉल्ड एज अ मेन सर्वे लाइंस. मेन सर्वे लाइंस के ऊपर जो भी फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट को एक लाइन से आप ज्वाइन करते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ टाई लाइन. Total number of links provided in a Gunter's chain is. Gunter's chain में 100 links, 66 feet. Correct answer is A. Chain survey is most suitable. देखो, जहाँ पे एरिया स्मॉल है, जहाँ पे फ्लैट टेरेन है, जहाँ पे अंड्यूलेशन कम है, ऐसे पर्टिकुलर रीजन में हम चेन सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं. So all the points are justified over here. So the correct answer is D. ग्राउंड लेवल में होना चाहिए, स्मॉल एरिया होना चाहिए, देन प्लेन एरिया होना चाहिए, एंड और एल्स द प्लांट्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्जर स्केल. जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स बहुत क्राउडेड नहीं होनी चाहिए. सो ये सारे के सारे पॉइंट्स चेन सर्वे परफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेड है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. 11. Every 20 meter chain should be accurate to within. Correct answer is plus minus 5 mm. Method used for chaining on the sloping ground is stepping method and the hypotenuse allowance method. Both the methods are used. Maximum allowable limit up to that a measurement may vary from its true value. कितने लिमिट तक हम अलाउ कर सकते हैं, एक्स रीडिंग है उसका ट्रू वैल्यू है, तो कहाँ तक हम वो मेजरमेंट को अलाउ कर सकते हैं कि तब तक हम उसको इनकरेक्ट रीडिंग ना बोले. दैट्स कॉल्ड एज अ परमिसिबल एरर. परमिसिबल एरर तक वो ट्रू वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट वो एरर को हमें कंपल्सरी रेक्टिफाई करना पड़ेगा. Number of links in a 30-meter metric chain is 150. 30 मीटर चेन है तो नंबर ऑफ लिंक्स 150. अगर 20 मीटर चेन है सो द नंबर ऑफ लिंक्स आर 100. Positive error is caused if the length of the chain is shorter than the standard. अगर जो लेंथ है चेन की वो शॉर्टर है जो स्टैंडर्ड है उससे.
Measurements are made along the incorrectly aligned line. Slope and sag correction is not applied. So all the options are correct over here. Correct answer is D. Compensating error in chaining are. Compensating error in chaining are proportional to the square root of the line. Proportional to the square root of the line. If the chain is found very short on the testing, it can be adjusted by. शॉर्ट अगर जब भी आप चेन सर्वे परफॉर्म करते हो और चेन छोटी है तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी गो फॉर द स्ट्रेटनिंग द लिंक्स। ओके, इसके लिए जब भी चेन सर्वे करते हैं तो चेन को जब भी आप ग्राउंड पे सबसे पहले अलाइनमेंट में उसको बिछाते हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसको दोनों साइड से आपको स्ट्रेट करना है एंड देन अप्लाई सर्टन जर्क इफ रिक्वायर्ड एंड देन उसको एक स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज inserting the additional circular rings and flattening the circular rings. So you can adopt any of the options over here. So the correct answer is D. Permissible limit of the error in chaining for the measurement on the rough or hilly ground is. Answer is D. During the chaining with a straight line, the leader of the survey party has 3 arrows and while the follower has the 5 arrows. The distance of the follower from the starting point will be 5 chains. कितना कवर अप किया हुआ है उन्होंने? 5 chains. Number of arrow मतलब कि एक arrow, that means 20 मीटर. ओके, एरो कब हम इंसर्ट करते हैं, जब भी हमारी 120 मीटर चेन कंप्लीट होती है, तो जहां पे कंप्लीट हो रही है एट दैट पॉइंट वी आर इंसर्टिंग अ 1 एरो। उसके बाद हम जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हटाते हैं और फिर उसको आगे लेके जाते हैं। सो ऐसे जितने एरो फॉलोवर के पास होंगे उतना डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, सो 1 चेन मल्टीप्लाइड विद द 20, तो यहाँ पे 5 चेन्स है तो 5 इंटू 20, so that will be a total distance. Invar tab is made on a alloy of. Answer is nickel and steel. इसमें कंफ्यूजन रहता है तो आप अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंगली भी याद रख सकते हो। सबसे पहले एन अल्फाबेट आता है एंड देन फिर एस आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका अगर प्रपोर्शन आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो 36 and 64. 36% of the nickel are there and 64% of steel is used. Correct answer is A. Chainage is the distance measured along a line. Chainage क्या होता है? Along a line जो distance measure करते हैं उसको बोलते हैं। In chain survey execution, the first step taken is reconnaissance survey. If h is the difference in the height between the endpoints of a chain of length L, the required slope correction is h square by 2L. देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी याद रखना है और उसके साथ साथ अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं सो वो वैल्यू को ये फॉर्मूला में रख के आंसर लेके आना है। वो टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Check lines or the proof lines in the chain survey are essentially required to increase the accuracy of the survey work. हमने ये आगे भी डिस्कस किया, only the language is changed over here. Which of the following would represent the surface of the water level of a steel lake? Steel lake है, उसकी water surface क्या represent करती है? That represent a level surface. The seg correction in the survey is always negative. Seg correction कब होता है? जब भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट को आपने एक स्ट्रेट लाइन में पकड़ना चाहिए था बट इंस्टेड ऑफ सम मिस्टेक हमने ऐसे पकड़ लिया था। सो दैट्स व्हाई
ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो डेफिनेटली सेम नहीं आता है। ओके इसके लिए सेक करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव आता है। An angle 45 degree with a chain line may be set out with 45 डिग्री। जब भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो इसके रिलेवेंट आंसर है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। 45 डिग्री का एंगल आपको चेन लाइन पे सेट करना है, चेन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो इसमें से आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो? आंसर इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। The surface of the zero elevation around the earth, which is the slightly irregular and the curved, is known as geoid surface. Correct answer is geoid surface. Which method consists in counting the number of paces between the 2 points of a line? एक लाइन के 2 पॉइंट में हमें पैसेस काउंट करने हैं, नंबर्स काउंट करने हैं कि कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए कौन से मेथड हम यूज करते हैं? पैसिंग। इंस्ट्रूमेंट shaped like a watch and it's carried in a pocket or attached to a one leg is that is called as a pesometer. पेसोमीटर वॉच जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप पॉकेट में या आपके साथ रख सकते हो और फिर उससे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, लीनियर मेजरमेंट। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सेट था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। अब इसके बाद इसका एक स्पेशल अलग से एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें हम इसके रिलेटेड एसएससी जेईई एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।